Hello students, welcome back to Science World, and if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have discussed about the components of food. Okay, and today's topic is preparation of food, preservation of food and digestion of food in our body. So let's start. We will start with the preparation of food. So what is raw food? When we talk about the preparation of food, first we will talk about the raw food. Raw means कच्चा, that is not cooked, जो पका हुआ नहीं है, ऐसा food इसको कहते हैं raw food. So some food items are eaten raw, such as fruits. Okay, so fruits we don't cook, we eat them as it is. Okay, some vegetables like carrots, cabbage, radishes and cucumbers, they can also be eaten raw as salad. Okay, we can eat them as a salad. These food items contain large amount of vitamins and minerals which get destroyed if they are cooked. When we cook these food items, like some vegetables are there, जैसे कि कैरेट्स है, कैबेज है, रेडिश है, या फिर और दूसरे जो फूड आइटम्स है जिसको हम वेजिटेबल्स कहते हैं, तो इफ़ दिस वेजिटेबल्स आर कुक्ड और दे आर हीटेड, देन व्हाट हैपन्स, उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ वॉश आउट हो जाते हैं. ओके, सो वी आल्सो ईट स्प्राउटेड ग्रेन्स. स्प्राउटेड ग्रेन्स आपने देखा होगा, ग्राम, चना है, मूंग है. ओके, तो इस तरह के जो ग्रेन्स होते हैं वो हम स्प्राउटेड खाते हैं. स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित, जिनमें अंकुर आते हैं. एंड दीज स्प्राउटेड ग्रेन्स आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. ओके, then we should remember to wash raw food items properly before eating because it removes dust and germs. So whenever we are eating raw food, जब हम कच्चा कोई भी फूड खाते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, we must wash them properly. Okay, because these fruits and vegetables, they contain lots of germs and dust. So if we will eat them as it is without washing, then these foods will make us sick. So always remember to wash raw food items properly before eating. Here you can see some food items that can be eaten raw. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, these are the अंकुरित मूंग or sprouted मूंग. Here other grains are there that are sprouted. Then these are the raw vegetables and fruits that we eat. Okay. Now if you want to eat sprouted grains, then what you will do? So here is the small activity. First what you have to do is soak some gram seeds. सबके घर में चना होता है, ग्राम सीड्स. तो आपको एक बाउल में चने लेना है. ओके, एंड यू हैव टू सोक देम ओवरनाइट. ओवरनाइट मतलब पूरी रात उनको पानी में सोक करके रखना है. देन ट्रांसफ़र देम टू अ वेट क्लॉथ. दूसरे दिन उनको वेट क्लॉथ में, यानी कि थोड़े गीले कपड़े में निकालना है. Then keep the cloth damp for a day, and then you keep that gram seeds in that cloth and keep it for a day. Then afterwards you will see sprouts will appear. उन चने में से जो अंकुर है वो बाहर निकल के आएंगे, जिसको हम कहते हैं स्प्राउट्स. Sprinkle some salt and lemon juice on sprouted gram and eat them as a salad. और फिर स्प्राउटेड ग्राम्स यानी कि चने के ऊपर थोड़ा सा नमक और लेमन जूस डाल के आप उसको एज अ सैलेड खा सकते हो. इट इज़ रिच इन प्रोटीन. इसमें अंकुरित जो भी सीड्स होते हैं, स्प्राउटेड जो सीड्स होते हैं, उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है. ओके, सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. देन व्हाट अबाउट कुक्ड फूड? सो कुक्ड फूड मीन्स जिसको हम कुक करके खाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड. Besides making the food tasty, cooking makes it softer and easier to digest. See, if we will eat all the foods raw, then there are some food items that our body cannot digest easily, and that's why we have to cook these foods. Like these pulses are there, all the pulses. Okay, मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, अरहर दाल, then ग्राम जो मैंने अभी आपको बताया. तो राइस है, गेहूँ है. तो ये देर आर सो मेनी फूड आइटम्स दैट कैन नॉट बी ईटन रॉ, जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते. एंड
दैट्स वाई वी हैव टू कुक देम. सो कुकिंग से क्या होता है, कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी. कुकिंग से फूड टेस्टी बनता है, इट बिकम सॉफ्ट एंड ऑल्सो इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स. कुकिंग से क्या होता है, जो भी जर्म्स होते हैं फूड आइटम के अंदर, दे आर किल्ड. ओके, एंड दैट्स वाई कुकिंग ऑफ फूड इज़ वेरी मच नीडेड. Then sometimes different cooking methods destroy the nutrients that are present in the food. We know that food contains different nutrients. In last video we have discussed about this. Okay, so carbohydrates, proteins, vitamins, minerals and fats, these are the nutrients that are present in the food, and hence the food loses its nutritive value. When we do कुक फूड, जब हम किसी फूड को पकाते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी बॉयल वेजिटेबल्स, जब हम वेजिटेबल्स को बॉयल करते हैं ज़्यादा पानी में, एक्सेस वाटर में, तो लॉट्स ऑफ विटामिन्स गेट डिजॉल्व इन वाटर. बहुत सारे ऐसे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और वो पानी के साथ निकल जाते हैं. इफ़ वी थ्रो दिस वाटर अवे देन वी विल लूज़ द विटामिन्स प्रेजेंट इन इट. और ये वेजिटेबल्स बॉयल किया हुआ वाटर अगर हम फेंक देंगे तो क्या होगा, दैट वी विल लूज़ द विटामिन्स प्रेजेंट इन इट. देयरफॉर वी शुड यूज़ दिस वाटर फॉर मेकिंग करी और सूप, और वी शुड कुक द फूड इन जस्ट इनफ वाटर. टेक अ लिटिल वाटर फॉर बॉइलिंग और कुकिंग द फूड. ओवर कुकिंग ऑल्सो डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. ओवर कुकिंग मतलब ज़्यादा पकाना, किसी भी वेजिटेबल को या कोई भी फूड आइटम जब हम ज़्यादा पकाते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर कुकिंग. और ओवर कुकिंग जो है हमेशा न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करती है. देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग. वी कैन कुक फूड इन डिफरेंट वेज लाइक स्टीमिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग. दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. फूड कुक बाय स्टीमिंग डज नॉट लूज इट्स न्यूट्रिएंट्स. स्टीमिंग जो होता है उसमें फूड से न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम नहीं होते ज़्यादा. फूड आइटम्स लाइक इडलीज आर प्रिपेयर्ड इन स्टीम. इडलीज जो आप खाते हो घर में, जो मम्मी बनाती है, तो वो जो इडलीज होती है दे आर प्रिपेयर्ड इन अ पॉट विच कंटेन लॉट्स ऑफ स्टीम. स्टीम मतलब भाप जिसको बोलते हैं, उसमें उनको पकाया जाता है. द डो यूज्ड for making it is first fermented by leaving it overnight. When your mother will prepare this idli batter, you just ask her that why she is keeping that idli batter overnight. रात भर उसको रखना पड़ता है fermentation के लिए. Okay, then in the morning you observe what happens. You observe at night and again in the morning you observe. You will see that the batter will become फ्लफ़ी. वो फ्लफ़ी हो जाता है क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होता है. फर्मेंटेड फूड इज़ मोर न्यूट्रिशियस. और ऐसा फूड जो फर्मेंटेड होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि जो उस फूड के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन को सही रखते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं और फूड जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. फूड्स लाइक राइस, एग्स एंड पल्सेस, दे आर बॉइल्ड एंड ईटन. राइस है तो उसको बॉईल करके खाना पड़ेगा. एग्स और पल्सेस है उनको भी बॉईल करके ही खाना पड़ता है. देन पूरीज जो होती है, पूरी जो हम खाते हैं, दे आर फ्राइड इन ऑयल, उनको तल के खाते हैं. ब्रिंजल एंड मीट, दे आर रोस्टेड. कुछ फूड को हम रोस्ट करते हैं, कुछ फूड को हम तलते हैं, कुछ फूड को हम बेक करते हैं, जैसे कि केक्स और पेस्ट्रीज और बिस्किट्स जो है उनको हमें बेक करना पड़ता है. तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. यू कैन लुक एट दिस पिक्चर नाउ. सो हियर food is prepared by cooking. Then cake, biscuits, they are baked in the oven or microwave. Then puris are fried in oil and idlis are steamed. पानी के अंदर उनको steam किया जाता है. Then again you can see here, this is the boiling of food, this is the steaming of food. Then grilling it is another method of cooking in which जो हीट होती है वो नीचे होती है, उसके ऊपर एक नेट होता है आयरन का, उसके ऊपर फूड रखा जाता है. ये इलेक्ट्रिक भी होता है या फिर जो कि हम जिसको बोलते हैं कोयला है ना, कोल होता है, उससे भी ये चलता है. देन बेकिंग इट इज़ अनदर मेथड. रोस्टिंग
and deep fry. So these are different methods of cooking. Then there is another activity, and this activity will show you that how vitamins and minerals they are removed from vegetables and other food items after boiling. So what you have to do is you can take help of your mother or your any elder person in the home. So take any seasonal vegetable and wash it thoroughly. कोई भी सीजनल जो वेजिटेबल है अवेलेबल जो है उसको आपको अच्छे से वॉश करना है. देन कट इट एंड बॉईल इट इन वाटर फॉर सम टाइम. आपको उसको पानी में थोड़ी टाइम के लिए बॉईल करना है एंड देन अलाउ इट टू कूल. देन यू टेस्ट दैट वाटर. जिस पानी में आपने बॉईल किया है उस पानी को टेस्ट करो. हाउ डज इट टेस्ट एंड वाई. तो ये जो वाटर है इट्स टेस्ट सॉल्टी. ये जो पानी है बॉइल्ड जिसमें हमने ये वेजिटेबल्स बॉईल किया है वो पानी सॉल्टी लगता है, थोड़ा सा नमकीन लगता है. एंड इट इज़ बिकॉज द बॉइलिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस विटामिन्स मिनरल्स जो भी वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलने वाले जो होते हैं वो पानी में आ जाते हैं वेजिटेबल से, और इस तरह से वो पानी के अंदर अपना टेस्ट जो है वो छोड़ देते हैं. एंड दैट्स वाई दिस वाटर बिकम्स salty. Then next topic is preservation of food. Why should we preserve food? We should preserve food so that we can use it for longer time. Okay, so preservation का मतलब है किसी चीज़ को संभाल के रखना फ्यूचर यूज़ के लिए. Have you ever left चपाती in a casserole? कैसरोल में अगर आपने चपाती रखी होगी तो उसका क्या होता है? You will see mold growing on it after a few days. 1 या 2 दिन बाद उस चपाती के ऊपर, कैसरोल में जो रखी है उसके ऊपर मोल्ड यानी कि जो फंगस होता है एक तरह का जिसको हम बोलते हैं फफूंद, वो ग्रो हो जाता है. फूड केप्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम गेट्स स्पॉइल्ड. और जो फूड हम ज़्यादा टाइम तक रखते हैं इट गेट्स स्पॉइल्ड, ख़राब हो जाता है, बिकॉज जर्म स्टार्ट ग्रोइंग इन इट. एंड इफ़ वी ईट सच फूड देन वी कैन फॉल सिक. हम बीमार हो सकते हैं अगर हम ऐसा स्पॉइल्ड फूड खाते हैं. वी कैन प्रोटेक्ट फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय प्रिजर्विंग देम. द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द फूड इन अ वे दैट सेव्स इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. ओके, सो प्रिजर्वेशन इज द मेथड बाय विच वी कीप द फूड इन सच अ वे दैट इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सेफ़ रहते हैं, वो भी उसी में रहते हैं, और हम लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं. और इस तरह की जो प्रोसेस होती है फूड को रखने की इट इज़ नोन एज प्रिजर्वेशन. आपने देखा होगा मम्मा जब भी कुछ लेके आती है बाज़ार से, ओके, दालें हैं या फिर राइस है या फिर कुछ ऐसा फूड जो जल्दी ख़राब होने वाला है, तो फ्रूट्स वेजिटेबल जो है जनरली हम फ्रीज़ में रखते हैं. देन मिल्क से बनी हुई जो भी चीज़ें होती है जैसे कि कोई स्वीट है या फिर दही है और दूसरी जो चीज़ें होती है पनीर वगैरह है, हम उनको फ्रीज़ में रखते हैं क्योंकि वो एक मेथड होता है प्रिजर्व करने का जिससे वो फूड स्पॉइल नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है. कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज टू बी यूज लैटर. और दोनों तरह का जो फूड होता है दैट इज़ कुक्ड फूड एंड अनकुक्ड मीन्स रॉ फूड, they are preserved in different ways for later use. So here are some methods of preservation of food. The first one is dehydration. In this method the food items are dried in the sun to stop the growth of bacteria and fungus in them. When this water is removed from the food, there are no chances of growing bacteria or fungus in the food, and that's why we dry this food items in the sun so that water is removed from the food. Certain foods like raw mangoes, fish, potato chips and papads are preserved by this method. आपने देखा होगा मम्मी जो है समर सीज़न में बहुत सारा काम होता है उनके पास सुखाने का, है ना. चिप्स बनाती है, पापड़ बनाती है, मिर्ची सुखाती है और बहुत सारे जो ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं उनको वो सुखा करके रखती है. जैसे लाल मिर्च होती है, देन धनिया होता है, मेथी होती है. तो ये सारे जो कुछ वेजिटेबल्स को हम सुखा के रखते हैं, जैसे मैंगो है,
है ना। कच्चा मैंगो है उसको काट के उसको सुखा के पाउडर बना के रखती है और उसको अमचूर कहते हैं। तो इस तरह का जो फूड होता है जिसको हम डिहाइड्रेशन की मेथड से उसको ड्राई करते हैं और फिर उनको बाद में यूज़ करते हैं। तो यू कैन सी हियर ग्रेप्स को ड्राई किया जाता है टू मेक दिस किशमिश जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो किशमिश होता है इसको बनाने के लिए ग्रेप्स को ड्राई किया जाता है। देन दिस आर द रेड चिलीज़, ड्राइड रेड चिलीज़। देन जो नॉनवेज होता है जैसे कि ड्राई फिश के फिश होते हैं या फिर दूसरा जो सी फूड है, इट इज़ ऑल्सो ड्राइड in the sun by the process of dehydration. It is preserved for later use. The next is sweetening. Sweetening means excess sugar का ऐड करना फूड में. So when excess sugar in food is added, it acts as a preservative. वो preservative का काम करती है. Excess sugar जो है it prevents the growth of bacteria and germs. We store food for a long time in the form of jams and jellies. जैम्स एंड जेलीज आपने देखा होगा, जो भी हम जैम का बोतल लेके आते हैं, है ना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसमें स्वीटनेस होता है, शुगर होती है इसलिए। जेलीज होती है, देन मुरब्बा चटनी जो मम्मी बनाती है घर में या दादी बनाती है, आम का जो मुरब्बा होता है या फिर लेमन यानी कि नींबू की चटनी हो गई या नींबू का अचार हो गया, तो उसके अंदर हम बहुत सारी शुगर डालते हैं जिसकी वजह से वो अचार और मुरब्बा ख़राब नहीं होते हैं। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड। द नेक्स्ट इज़ कैनिंग। अब कैनिंग क्या होता है कि इसमें जिस भी कंटेनर में हमें फूड पैक करना होता है उसमें से एयर निकाल दी जाती है। ओके, सो एयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम फूड एंड देन द फूड इज़ पुट इनटू एन एयर टाइट कैंस। एयर टाइट कैंस में उनको रखा जाता है फूड आइटम को, so that germs do not grow into that food. Food items, अब airtight means air cannot enter in that jar or that can. Food items like vegetables, seafood, dairy products, then sweets, they are preserved through this method. You can see here, these are the canned food. अलग अलग कैन आप देख सकते हो। आपने रसगुल्ला भी खाया होगा जो कि कैंड होता है। देन इसी तरह से बहुत सारे जो पिकल्स होते हैं वो भी कैनिंग के प्रोसेस से प्रिजर्व किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल्सो सम फूड आइटम्स। देन सॉल्टिंग इज़ अनदर मेथड। वी कैन ऐड सॉल्ट टू प्रिजर्व फूड आइटम्स लाइक पिकल्स और फिश। मैंने अभी आपको लेमन के अचार का बताया था, नींबू का अचार, उसको भी हम नमक लगा के रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होता है। देन फिश है या फिर दूसरे जो सी फूड होता है उसको भी सॉल्ट लगा के रखते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे और हम उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्टिंग इज़ अनदर मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड फॉर लॉन्गर टाइम। द नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फूड केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर रिमेन्स फ्रेश फॉर सम डेज। सबके घर में फ्रीज है। ओके, तो ये जो फूड होता है जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो इट रिमेन्स फ्रेश फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए अच्छा होता है। जर्म्स डू नॉट ग्रो ईजिली इन कूल प्लेसेस बिकॉज जर्म जो है वो बहुत ज़्यादा कूल प्लेसेस पे ग्रो नहीं होते हैं, एंड दैट्स वाई वी कीप दिस फूड इन द रेफ्रिजरेटर. We preserve food items like milk, then fruits, vegetables and cooked food by keeping them in the refrigerator. तो बहुत सारा हमारा जो एरिया होता है फ्रिज का अंदर वो भरा रहता है ना, उसमें हम दूध रखते हैं. We keep vegetables, we keep some fruits, also we keep dairy items, we keep मसाला जो स्पाइसेस होते हैं उनको भी हम अंदर रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक अच्छे रहे. देन केचप बॉटल होती है, सॉस होता है. तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम फ्रीज में रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होते और हम उनको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं. देन बॉइलिंग इट इज़ अनदर मेथड. वी कैन प्रिजर्व फूड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो बॉइलिंग से जो फूड हम प्रिपेयर करते हैं, ये जो मेथड है इससे थोड़े समय के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क. मिल्क जो है बिना बॉइलिंग के अगर हम रख देंगे ऐसे ही तो इट विल गेट स्पॉइल्ड. इफ़ शी कीप्स विदाउट बॉइलिंग इट देन द मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड. बिना गर्म किए दूध को अगर हम रखेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं
और वो मिल्क जो है वो खट्टा हो जाता है, इट बिकम सोर, उसको कहते हैं सोरिंग ऑफ मिल्क, एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रिजर्व मिल्क by this method, that is boiling. Then here you can see the method of preserving food, that is drying in the sun or dehydration. This is also, these are some food items like that are dried in the sun. Okay, now our next topic is journey of food in our body. When we eat food, it goes through our different organs in the body. Okay, and what are these organs and how this food is digested in our body, that we will see in this topic. So here it is, what is digestion? First we will discuss about digestion. What is digestion? Digestion is the process of breaking down food into simpler form that body can use. Is okay, we know that our body cannot use direct food. If you will eat a banana और इफ़ यू विल ईट एप्पल और कोई भी फूड आइटम जब आप खाते हो तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है. फर्स्ट दैट फूड इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस. पहले उन फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है, सिंपल फॉर्म में उसको लाया जाता है, एंड देन वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन. So this process is known as digestion. So digestion is the process of breaking down of food into simpler form that body can use. Okay, so there are different organs of digestive system. Mouth, okay, mouth, then food pipe, or we can say esophagus, it is also known as food pipe, then stomach, then liver, pancreas, small intestine and large intestine, then anus. These are the different parts of digestive system, main parts of the digestive system. The blood absorbs this digested food and takes it to all parts of the body. और इस पूरे सिस्टम में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको लेकर के सारे बॉडी के पार्ट्स के पास पहुंचाता है. सो लेट्स सी दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल. वी विल स्टार्ट विद द माउथ. सो डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो स्टार्ट होता है माउथ के अंदर, इनसाइड द माउथ. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ. द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. In our last videos we have already discussed about the teeth. There are different types of teeth in our mouth. 4 types of teeth are there, and these teeth help to cut this food into smaller pieces. Then here there are salivary glands. Salivary glands आप देख सकते हो यहाँ पे. These are the salivary glands present in the mouth, and these salivary glands produce digestive fluid called saliva. ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है. एंड व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा इज अ वाटरी एंड डाइजेस्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द माउथ, जो हम बार बार बाहर भी निकालते हैं कभी कभी. ओके, तो ये जो सलाइवा है इट गेट्स मिक्सड विद द फूड व्हेन वी च्यू इट, एंड दिस मेक्स द फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट. सलाइवा का काम क्या होता है? फूड को मॉइस्ट यानी कि नरम बनाना और सॉफ्ट बनाना, गीला बनाना, सो दैट वी कैन ईजीली स्वैलो इट, और इससे हम ईजीली उसको स्वैलो कर सकते हैं या फिर निगल सकते हैं. द इनसोल्यूबल स्टार्च इन फूड चेंजेस इनटू सोल्यूबल शुगर बाय एक्शन ऑफ सलाइवा. स्टार्च इज टेस्टलेस बट शुगर इज स्वीट. हमें पता है कि शुगर का जो टेस्ट है वो स्वीट होता है. तो जब हम फूड को चेविंग करते हैं और ऐसे फूड खाते हैं जिसमें स्टार्च होता है, जैसे कि ब्रेड है या फिर राइस है, चपाती है, तो इसमें स्टार्च, इन फूड आइटम्स में स्टार्च होता है जो चबाते वक्त उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है. एंड बिकॉज दिस सलाइवा ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च इन द माउथ, इट बिकम्स स्वीट. तो ये जो फूड हम चबाते हैं मुंह में जिसके अंदर स्टार्च है, वो चेविंग के बाद मीठा लगने लग जाता है. थोड़ी देर आप उसको चबाओ तो आपको वो मीठा लगेगा, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होता है शुगर में. Okay, so this is the digestion of food in the mouth. Means we can say that food actually starts digestion in mouth. तो mouth के अंदर ही digestion जो है food का वो start हो जाता है. Then inside the stomach, next जो part है
डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है एसोफेगस यानी कि फूड पाइप। तो फूड पाइप के थ्रू जो है स्टमक में यहाँ पर फूड जो है वो एंटर होता है। सो वी स्वैलो द फूड आफ्टर इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। देन द टंग pushes it down through a tube-like structure called esophagus or food pipe. Here you can see the food pipe. Here this is our mouth, here we chew the food and then this food is pushed down to the food pipe, and this pushing of this food, which organ helps us? Tongue pushes it down through the tube-like structure called food pipe. Then this food pipe is connected here to the stomach. Look at the stomach. The stomach is a hollow muscular bag. Muscular bag है J shaped, इसका शेप होता है J की तरह, and that's why it is known as J shaped bag. Okay. So this is a muscular bag. It churns the food into fine paste. इसके अंदर फूड आने के बाद ये एक पेस्ट में चेंज हो जाता है. द वॉल्स ऑफ स्टमक रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस. ये जो वॉल्स है स्टमक के इंटरनल वॉल्स, यहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिलीज होते रहते हैं और वो इस फूड में मिक्स होते हैं अच्छे से, एंड देन दिस फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर और वी कैन से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन. मीन्स जो प्रोटीन्स है वो है, या फिर जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो दूसरे जो फूड आइटम्स हैं जो हमने खाए हैं उन सबको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जाता है. तो दिस इज़ अबाउट द स्टमक. देन नेक्स्ट जो ऑर्गन है या पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है स्टमक. स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन. तो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. यू कैन सी दिस रेड कलर पार्ट. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी. ये सबसे लंबा होता है ये. In intestine, what happens when this food is pushed from the stomach into the long thin coiled tube called small intestine. ये लंबी coiled tube होती है. coiled मतलब ये ऐसी होती बहुत लंबी है, लेकिन वो एक coiled form में यहाँ पर होती है. The inside walls of this small intestine produce a juice that mixes with the food and breaks it down further. जैसे स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ जूसेस वॉल्स से सीक्रेट होते हैं और वो मिक्स होते हैं फूड के अंदर, और वापस जो फूड है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट होता है. अदर डाइजेस्टिव जूसेस आर पोर्ड बाय लीवर एंड पैनक्रियाज. लीवर एंड पैनक्रियाज मैंने आपको बताए थे अभी इसमें. तो लीवर और पैनक्रियाज यहाँ देखिए आप, दिस इज लीवर एंड दिस इज़ पैनक्रियाज. तो लीवर से जो बाइल सिक्रेट होता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है. तो ये दोनों ही जो जूसेस है दे आर वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फूड. ओके. सो बाइल फ्रॉम द लीवर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. जो भी हम फैट खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम होता है बाइल का, जो कि लीवर में बनता है. ओके. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड्स हियर. यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है. बट जो डाइजेस्टेड फूड है अब उसका होगा क्या? व्हाट विल हैपन? बाय नाउ द डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड. स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो फूड एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. देन इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. देयर आर मेनी ब्लड वेसल्स इन द बॉडी एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है. ब्लड वेसल्स जो कि छोटी छोटी पाइप्स होती है, ट्यूब्स होती हैं, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है. तो ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो फूड आइटम जिसको मिलते हैं उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय दिस ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट इज़ कैरीड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू दिस ब्लड. ओके. सो in small intestine digestion ends and absorption starts. Then what happens in large intestine? Large intestine जो कि सबसे लास्ट वाला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का. What happens here? The undigested food passes into the large intestine. यहाँ पे आता है. Okay. Then the walls of the large intestine absorb extra water. इसके अंदर
जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, इसके अंदर जो फूड आता है डाइजेस्टेड फूड, इसमें से एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी फूड बच जाता है उनमें से उस फूड में से एक्स्ट्रा जो भी वाटर होता है इट इज़ रिमूव्ड. So these walls of large intestine absorb the extra water from this waste, and the solid waste food is removed from the body through this anus. Anus is the opening of this large intestine. Okay, through this anus the solid waste is removed from the body. Then what happens to the liquid waste? जो भी लिक्विड वेस्ट कलेक्ट होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि यूरिन है ना, और दूसरे जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होते हैं. उसमें से कुछ सॉल्ट्स होते हैं और कुछ लिक्विड होता है, तो ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी क्या करती है? तो लिक्विड वेस्ट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में, और स्वेटिंग जो हमारी बॉडी में आता है पसीना, उसके फॉर्म में हम ये लिक्विड वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर बॉडी. देन वी विल हैव अ रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. ओके, जो भी हमने अभी पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकैप हम ले लेते हैं. सो food gives us energy and helps us to grow and stay healthy. Foods contain 5 different types of nutrients, namely carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Carbohydrates and fats provide energy, proteins build muscles and help in growth, vitamins and minerals protect our body. You must eat a balanced diet containing food from all the food groups, water and roughage. Some foods are eaten raw to maintain their nutritive values. Cooking makes the food tasty, softer and easy to digest. Food gets spoiled by dust and germs. It should be kept covered. Preservation of food helps in keeping food safe and safe for later use. Our body breaks down the food we eat into simpler forms, and the process is known as digestion. Mouth, stomach, liver, pancreas, small intestine, large intestine, these are the parts of digestive system. Digested food is taken by blood to the various parts of the body, and undigested food is removed from the body. So this is all about digestion in the body. So thank you for watching this video. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.